सशक्त आवाज लाइव में आपका स्वागत है। मैं राजेंद्र सोनी एक बार फिर हाजिर हूं आम जन से लेकर राजनीति और क्षेत्र की विभिन्न घटनाओं के साथ, पक्ष न विपक्ष, सिर्फ निष्पक्ष। गौतम बुद्ध नगर के इंस्टीट्यूट ऑफ चार्टर्ड अकाउंट्स ऑफ इंडिया के शाखा के तत्वाधान में 2 दिवसीय राष्ट्रीय परिचर्चा विवेचना 2022 का सफल आयोजन 24 और 25 दिसंबर को संपन्न हुआ। नोएडा के सेक्टर 62 स्थित पार्क एसेंट होटल के सभागार में ICAI की गौतम बुद्ध नगर शाखा के चेयरमैन दिलीप कुमार सिंह की अध्यक्षता में 2 दिन तक चली परिचर्चा में बतौर मुख्य अतिथि के रूप में जहां सर्वोच्च न्यायालय की न्यायमूर्ति जस्टिस भानुमति ने अपनी गरिमामय उपस्थिति से सभी को अभिभूत कर दिया, तो वहीं वक्ताओं के रूप में मौजूद CA कमल गर्ग, CA राकेश ओझा, CA राजीव सिंह, CA अनुज अग्रवाल, CA अतुल गुप्ता, अधिवक्ता कपिल गोयल, डॉक्टर श्री ज्योति, CA अविनाश गुप्ता ने अपने अनुभव साझा किए। सचिव सतीश कुमार तोमर के कुशल संचालन में जानकारी देते हुए चेयरमैन दिलीप कुमार सिंह ने बताया कि इस कार्यक्रम में नोएडा और समूचे उत्तर प्रदेश की शाखाओं के 600 से अधिक प्रतिभागियों ने हिस्सा लिया। कार्यक्रम को सफल बनाने में गौतम बुद्ध नगर टीम की भूमिका वास्तव में उल्लेखनीय रही। कार्यक्रम के दौरान कार्यक्रम अध्यक्ष CA राजकुमार सिंह अडुकिया, कार्यक्रम उपाध्यक्ष CA ज्ञानचंद मिश्रा, रिसर्च कमेटी के अध्यक्ष CA अनुज गोयल, चेयरमैन दिलीप कुमार सिंह, वाइस चेयरपर्सन श्वेता अग्रवाल, शाखा हेड मीरा किशोर, शाखा सचिव सतीश कुमार तोमर, कोषा अध्यक्ष CA गौरव गर्ग, सिकासा चेयरमैन CA विमल कुमार तथा कार्यकारिणी सदस्यों में CA आलोक कुमार, CA केसी गुप्ता, CA मयंक गर्ग, CA पवन चौहान, CA नितिन गुप्ता, RCM CIRC आदि ने अहम भूमिका का निर्वाह किया। कार्यक्रम के दौरान वक्ताओं ने कहा, Very good evening to all of you. Just now they told about the topic economic damages. Actually, I have not come prepared on that. Whatever is within my reach, I will try to say a few words of my experience. That is normally nowadays these auditors are being called as the expert witnesses in the commercial matters and in both in courts as well as in arbitration. So I will share some of my thoughts on that aspect so that it will be of immense use to all of you, which you might not have known that what are the mistakes that you commit and how you can help the courts and tribunals. Only on this now I will say a few words. See, financial is the essential aspect of life. So are the chartered accountants who are the modern day financial experts. I would like to quote former President of India, APJ Abdul Kalam, who termed the chartered accountants as partners in national development. Actually, you are really the partners in the national development. I am happy to note what Gyan Chandraji told, that the laudable objects regulating the profession of accountancy, imparting continuing education, enhancing the standards of performance and other objects. I am very, very happy to note that about 5,000 volunteers are working just for uplifting the standards of this institution, and that too free of cost. It is very, very, very laudable objects that I like to know just to tell that this is. And I also congratulate those volunteers who are just contributing. Nowadays everything is up. We are all commercial. We are more or less all of us have become commercial. And I congratulate those 5,000 volunteers who spend their time and energy and also their talent and potential skills for the upliftment of this institution. I really congratulate them. These objects which Mr. Gyan Chandra Mishra was saying would certainly lift up the standards of auditing, individual profession and collectively of this institution. The role played by the accountants in the corporate entities is very crucial. That is, you are managing the budgets, audits, taxes and business plans. By and large, you only verify that these financial statements and whether these financial statements follow the generally accepted accounting principles. At the same time, you should also
think that you are responsible to the. इसको हम कहते हैं सोशल इंजीनियरिंग। क्या कहते हैं? सोशल इंजीनियरिंग क्या होती है? अच्छा, कितने लोगों का साइबर फ्रॉड हो चुका है, पैसे निकल चुके हैं पेटीएम से या बैंक से? जरा हाथ खड़े करें। बताएंगे कोई नहीं, मैं सबका नाम लेना शुरू करूँगा तो मुझे पता चल जाएगा। आप में से आधे लोग मुझे कॉल करते हैं, इसलिए मुझे पता है। और ज़्यादा अगर आप सियाने बनेंगे तो मैं कुंडलियाँ भी खोल दूंगा लोगों को। यहाँ पर बैठे हैं, सबको जानता हूँ भाई साहब। नोएडा में मैं सबको पहचानता हूँ। बिल्कुल सब भारतवर्ष में भी लोग मुझे भी पहचानते हैं, मैं भी पहचानता हूँ। मॉडल संगठन के अति उच्च पदाधिकारी का मुझे फोन आया। बोले सर, मैं काफी अखबारों में लेख लिखता रहता हूँ। मैंने कहा आपका पति ही ऐसा है, आपका तो कार्य ही ऐसा है, और कुछ व्यक्ति हैं। मैं थोड़ा मतलब मैंने कहा जी वीडियो बन गई आपकी। मुझे पता है सेशन जो है ना, आज का ये सेशन कमल गर्गी जो बड़े प्रोमिनेंट चार्टर्ड अकाउंटेंट हैं, कंपनीज एक्ट में व्हाट आर द लेटेस्ट चेंजेस पर्टिकुलरली फॉर द स्मॉल एंड मीडियम एंटरप्राइजेज, और नफरा का जो लफड़ा है इज देयर फॉर प्रैक्टिकली ईच एंड एवरी लिस्टेड कंपनी। आपको जो नफरा की वेबसाइट पर कौन सा फॉर्म सब अपलोड करना होता है सर? नफरा 2 पर कहीं ना कहीं जो अटेस्ट फंक्शन कर रहे हैं, कमल जी जरूर आप इसे कवर कीजिएगा कि अटेस्ट फंक्शन इज नाउअडेज नॉट ए चाइल्ड्स प्ले। वी आर सपोज्ड टू बी वेरी वेरी क्लियर। थ्रो अवे प्राइस में हम अटेस्ट फंक्शन नहीं कर सकते, आर्बिट्रेरी मैनर में अटेस्ट फंक्शन नहीं कर सकते। रेफरल में उस पर एडवोकेट ने रेफर कर दिया, उसने बना के दे दिया और हमने अटेस्ट फंक्शन कर दिया, वो नहीं हो सकता। और चार्टर्ड अकाउंटेंट को अटेस्ट फंक्शन करने की जरूरत नहीं है। अगर हम ये चाहते हैं कि भाई मुझे एक्सपर्टाइज नहीं है, मैं इतना टाइम नहीं दे सकता, मैं इतनी नॉलेज पजेस नहीं कर सकता, तो देर। और सर, आज आप विवेचना के माध्यम से खास करके सीए के जो कार्यक्रम रखे हैं, क्या उद्देश्य था मेरा? सर, ये 2 दिवसीय नेशनल कॉन्फ्रेंस है जिसमें हम लोग डिफरेंट टॉपिक्स लिए हुए हैं अपने सीए भाइयों को एजुकेट करने के लिए, उनको सीए इंस्टीट्यूट के बारे में बताने के लिए, है ना। एंड हमारा जो मेन उद्देश्य है कि हमारे जो चार्टर्ड अकाउंटेंट भाई लोग हैं उनको नॉलेज अपग्रेड किया जाए इस माध्यम से। हमारे पास जितने भी मतलब हमने चीफ गेस्ट के रूप में आर भानुमति जी आई हुई हैं, एंड पुलिस कमिश्नर भी गौतम बुद्ध नगर लक्ष्मी जी थी, तो समहाउ वो किसी कारणवश अभी अवेलेबल नहीं हो पाई हैं, बट हम ट्राई करें कल आ जाएँ। एंड इसका मेन हम लोग जो पर्पस है विवेचना, मतलब द एक्सप्लोरिंग द फ्यूचर। हम लोग जो फ्यूचर में क्या टेक्नोलॉजी के माध्यम से जो डेवलपमेंट है इकोनॉमी को बढ़ाने के लिए, एक चार्टर्ड अकाउंटेंट अपनी भूमिका किस तरह रखता है और देश को बढ़ाने में, इकोनॉमी को बढ़ाने में बेसिकली। तो ये हम लोग इसी को प्रयास कर रहे हैं कि इसमें अच्छा सहयोग रहे। सर, अभी बात कर रहे थे इनकम टैक्स की, किस तरह से इसको इनकम टैक्स को बढ़ाने में मदद होगा सीए के माध्यम से? सर, हम चार्टर्ड अकाउंटेंट जाने ही जाते हैं इनकम टैक्स के लिए। जो सारे जितने भी क्लाइंट्स हैं, जो आम पब्लिक है, उनको अवेयर कराते हैं इनकम टैक्स के बारे में, ताकि वो ज़्यादा से ज़्यादा इनकम टैक्स पे कर सकें और देश की इकोनॉमी में देश की इकोनॉमी बढ़ सके। सर, अगर हम बात करें तो आज जो नए सीए हैं, खास करके जो नए होंगे, उनके लिए क्या कुछ कहेंगे? सर, नए चार्टर्ड अकाउंटेंट के लिए हमारा सबसे बड़ा ICAI ना कैंपस प्लेसमेंट करता है, जो कि नए बिगनर हैं उनको 9 लाख रुपीज़ से स्टार्टिंग है, जो मिनिमम है। और जो भी कंपनी अगर 9 लाख से कम ऑफर करती है उनको तो हम लोग बुलाते ही नहीं है प्लेसमेंट में। उसके बाद उनको हम लोग बैंकिंग के माध्यम से बैंक ऑडिट का मिलता है और खुद का वो सेल्फ प्रैक्टिस कर सकते हैं। एंड अगर जॉब में भी जाते हैं तो कॉर्पोरेट में अच्छा उनको अपॉर्चुनिटी मिलता है। क्या कुछ कहेंगे आप माध्यम से हमारे? सर, मैं बस अब एक मैसेज देना चाहूँ कि हम चार्टर्ड अकाउंटेंट देश के बढ़ोतरी में अपने दिल तन मन से पूरा सहयोग कर रहे हैं और हम आगे करते रहेंगे। थैंक यू। जय हिंद। सर, अगर हम बात करें आज विवेचना के माध्यम से क्या कुछ कहना चाहेंगे जो कार्यक्रम का आयोजन किया है? देखिए, 2 दिन का ये नेशनल कॉन्फ्रेंस नोएडा ब्रांच में आयोजित किया जा रहा है और 2 दिन में करीब 8 स्पीकर नेशनल लेवल के हमारे यहाँ आ रहे हैं। हम लोग चार्टर्ड अकाउंटेंसी प्रोफेशन के प्रैक्टिशनर्स और सर्विस के जो मेंबर्स हैं उनके लिए विभिन्न विषयों पर
एक विवेचना नाम से हम लोगों ने नेशनल कॉन्फ्रेंस रखा है, जिसमें इनकम टैक्स पे, कंपनीज एक्ट पे, अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स पे और इसके अलावा बैंकिंग इंडस्ट्री पर, इन सब चीज़ों को ध्यान में रखते हुए कि जो कि मेंबर्स की प्रैक्टिस और उनके सर्विस में कंट्रीब्यूट कर पाएँ, इसके लिए 2 दिन का कार्यक्रम रखा गया है। करीब 500 मेंबर्स का रजिस्ट्रेशन है जो हमारे यहाँ पार्टिसिपेट कर रहे हैं और ये देखा जाए तो अब तक नोएडा के बड़े कार्यक्रम में एक कार्यक्रम हो रहा है। सर अगर आप बात करें, ये केवल नोएडा के लोग हैं या और नहीं, ये नोएडा और आसपास के, मेरठ के, गाजियाबाद के, दिल्ली के, सब जगह के लोग यहाँ पे आए हुए हैं। सर मेन इसका उद्देश्य क्या है कि जैसे आपने के सीए के सभी लोगों को इनवाइट किया और कार्यक्रम के बारे में जानकारी दी, लेकिन इसका मुख्य उद्देश्य क्या है? मुख्य उद्देश्य ऐसा है कि हमारा प्रोफेशन एक ऐसा प्रोफेशन है जो समाज में पिछले 75 सालों से सेवा दे रहा है और इस प्रोफेशन में ये देखा गया है कि इस प्रोफेशन में हमेशा बदलाव होता रहता है। उस बदलाव को अडॉप्ट करके ही हमें आगे बढ़ना पड़ता है। तो इसलिए जो नए चेंजेस हैं गवर्नमेंट के रूल्स में, रेगुलेशंस में, इनकम टैक्स में, ऑडिट में, इंडस्ट्रीज़ में, उन चीज़ों को डिस्कस करते हैं हम लोग। जो हमारे स्पीकर्स आते हैं वो सभी बदलाव को डिस्कस करते हैं, जिससे कि जो मेंबर्स हैं वो उस समझ पाएँ और जो उनकी ऑडिट की प्रक्रिया है उसको अच्छे से कर पाएँ। सर अगर हम बात करें, जो इसमें बहुत से लोग ऐसे होंगे, बहुत ऐसे होंगे जो जूनियर होंगे जी, उनके लिए क्या दिशा है? देखिए, जूनियर मेंबर्स के लिए अभी देखा जाए तो हमारे यहाँ कैंपस प्लेसमेंट होता है, जिसमें मेंबर्स जितनी हमारे पास अभी जॉब के लिए एप्लीकेशंस आते हैं कंपनीज के, हम उतनी सप्लाई नहीं कर पा रहे हैं। तो एक तो ये हो गया नए मेंबर्स के लिए। नए मेंबर्स के लिए प्रैक्टिस में भी बहुत स्कोप है। हमारे यहाँ साइबर सिक्योरिटी पे अच्छी प्रैक्टिस होती है, इसके अलावा फॉरेंसिक ऑडिट है और नए स्कोप में अगर हम देखें तो आज की डेट में हमारा ट्रांजैक्शन ऑडिट एक नया चैप्टर है। तो नए मेंबर्स के भी प्रैक्टिस और जॉब दोनों जगह स्कोप है। नए मेंबर्स अपने आप को ज़्यादा अपग्रेड रखने की कोशिश करते हैं। टेक्नोलॉजी एक बहुत इंपॉर्टेंट हो गया है, ऑडिट टूल्स हैं, किट्स हैं, वो नए मेंबर्स को हम लोग प्रोवाइड कर रहे हैं। अभी इंस्टीट्यूट कोशिश कर रहा है कि पूरे इंडिया में 3.5 लाख मेंबर जो हमारे हैं, 3,65,000, उनको हम लोग ऑडिट टूल प्रोवाइड करें अच्छे से अच्छा। तो इस तरीके से मेंबर्स को रिक्वायरमेंट के हिसाब से हमें अपग्रेड करना पड़ता है कि वो सरकार की समुचित जो पॉलिसीज हैं उन पर अपने आप को खड़ा करके और अच्छी समाज सेवा दे पाए। सर अभी आप मंच संचालन कर रहे थे, बहुत बढ़िया, बहुत सुंदर तरीके से कर रहे थे, ये आपने कहाँ से सीखी थी? ये जिम्मेदारी तो हमारे संगठन में पहले दिन से आ जाती है। जब हम शुरुआत में अपना ट्रेनिंग शुरू करते हैं तो उसी दिन से हमें ये जिम्मेदारी दी जाती है और धीरे धीरे एक्सप्लोर हो जाती है। जब हम प्रोफेशन में आते हैं उससे पहले हमारे जो सीनियर्स हैं इसको इन्वॉल्व करा देते हैं हमारी प्रैक्टिस में, तो ये एक तरह से। और दूसरा, एक व्यक्तिगत लेवल पे भी थोड़े थोड़े इम्प्लीमेंटेशन होते हैं। सर अगर हम बात करें, आज विवेचना के माध्यम से कार्यक्रम का आयोजन किया गया है, इसमें इनकम टैक्स को लेकर के क्या चर्चाएं हुई थी? क्या आज मुख्य उद्देश्य हमारा कंप्लायंस पे था और कंप्लायंस भी लीगल कंप्लायंसेस। सो टैक्स कंप्लायंसेस हैव नॉट बीन टच अपॉन टुडे, वी विल टच ऑन अनदर सेशंस सिंस दिस इज अवर नेशनल कॉन्फ्रेंस। तो हमारी एक विषय रहता है कि किन मुद्दों को ज़्यादा डीपली डिस्कस किया जाए। और जैसा आज हमारे कमल गर्ग जी ने बहुत अच्छी तरह से कंपनी लॉ मैटर्स पर बात की, जहाँ पे जो लीगल फ्रेमवर्क है उसमें कितने लेकुनाज हैं, कितनी दिक्कतें होती हैं, इन सब पे चर्चा की। तो उसी के लिए हम जो है बाध्य हैं और उसी तरह से हम अपने प्रोग्राम का संचालन भी करते हैं। इसी में एक और चीज़ मैं जोड़ना चाहूँगा, आज हमारे बीच में फॉर्मर जज आर भानुमति भी होंगी। वी आर थैंकफुल टू देम कि उन्होंने अपने बिजी शेड्यूल से हमारे लिए समय निकाला, हमारे ऑर्गेनाइजेशन समय निकाला और एक सीए प्रोफेशन के बारे में उनकी जानने की इच्छा और उसके ऊपर उनकी जो हमारे लिए प्रति कोई मैसेज आएगा हम उसको सुनने के लिए बहुत ही आतुर हैं। और 2:30 बजे वो हमें ज्वाइन कर रही है। ये हमारे लिए प्राउड मोमेंट होगा, हमारी एसोसिएशन के लिए, हमारे गौतम बुद्ध ब्रांच के लिए, हमारे आईसीआई के लिए। थैंक यू। अपने आसपास की खबरों के लिए देखना ना भूले सशक्त आवाज लाइव न्यूज चैनल। सब्सक्राइब कीजिए एक लाइक के साथ।